So, Assalamu alaikum, guys. I'm here to present you like a beginner's guide to freelancing. This is not all of it, but I've been working in this field for 3 years now. I have friends, I've seen people who have been working in this field, and just based on my little experience of how it has been, I have prepared a small guide that, if not at least, gets you all set up, at least gets you started. So I'll start by a brief introduction of mine. So I'm Omer Ahmed. I'm a final year student of mechatronics engineering at Zavis. Though I barely know the subject, I lost interest a long while ago. So maybe you know more about engineering than I do. Moving ahead, I have worked in the corporate sector for almost 2 years. I was working in brand management, marketing, and community management. Because the thing that I love to do is like creating brands, helping them establish a unique identity and develop name for themselves in the market. And I have been freelancing since almost 2019. I started in late 2019, and I have been continuously working in the field. The main services that I provide are for writing and design. So moving ahead, let's start with what is the concept of making money on the internet. So the thing is that I started the topic, and based on the experience of many people that I know, there are basically only two ways to make money on the internet that is associated with the concept of providing value. Providing value is that कि आप किसी से उसके पैसे लेते हो and आप उसको उसके बदले में कुछ देते हो जो कि उसको लगता है कि is worth their money. That is why they are paying you, obviously. So there are two ways to do that. Either you can provide a service. That service can be anything. That could be, writing, or maybe you can, if you're a graphic designer, so you're providing them with designs or logos or animations or videos, or if you're a content writer, so you can help them by writing articles or ebooks or research articles. It could be anything. Moving ahead, we come to the part where we are selling a physical or digital good to them. A physical good could be that you have an e-commerce store and you're basically selling merchandise, or you're selling basically, let's say, tech products or anything like that. तो सीन ये होता है कि वो एक ऑर्डर प्लेस करते हैं and उससे और फिर आप उनको सामान डिलीवर कर देते हैं. So all this exchange is happening through the internet. So this is one way to make money on the internet. Then we come to the digital goods. Digital goods could be कि आपने एक e-book लिखी, सही है, या फिर you made a design, you made an NFT, या फिर अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, so you recorded a voice over, या फिर अगर if you know how to make music, so आपने music बना लिया that people can use in their videos. So you're charging people money for that. So आपने एक digital good बनाया and you uploaded that on the internet. So people can buy that and you get paid. Basically, you get paid for that. As compared to physical and digital goods, इन दोनों में फर्क ये होता है कि digital goods के अंदर सीन इस तरीके का होता है कि you can it takes less time and makes you more money. It's like कि मैंने अगर एक दफा एक जो है वो मैंने एक पिक्चर ले ली, सही है, एंड जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पिक्सेल्स है, एनवाटो है, वहाँ पे there is a gallery of images that you can use and basically you can download for a certain amount of money. So all those pictures are taken by people. अब उन्होंने वो एक पिक्चर एक दफा ले ली and they uploaded it on that platform, and now people can download it uncountable times. So you take one picture and you can make unlimited amount of money off of that. As compared to physical goods, that is like a tangible amount. There's a limited number of items that you can upload on your store, and that would at some point run out of stock. But as opposed to that, digital goods can make you uncountable amounts of money. So the thing is, if you're planning to do that, if you are comparing between physical and digital goods, I would always just go for something that is digital, because that makes you more money and takes less effort. Okay. So moving ahead, I believe this is one of the most important slide of my presentation. It is in this age of AI, what skills to acquire. कौन से ऐसे skills हैं जिनको
AI जिनमें AI आपको रिप्लेस नहीं कर देगा अगले 10 साल के अंदर. And to be honest, I couldn't answer the question. So what I did is that I asked AI. I went to ChatGPT ke tell me what's up. So and the thing was ke he did answer my question. And uske baad I went to other places on the internet and I asked the same question. And they were all giving me something. But if I were to say honestly, there were no really any hard skills present. जो के they told के cannot be replaced by AI. What they told me is that उन्होंने मुझे soft skills बहुत सारे बताया that you need to be able to communicate properly and things like that. But I don't believe के that can take you a lot of places or make you a lot of money. क्योंकि at the end of the day आप skills क्यों acquire कर रहे हो? आप कोई flex तो नहीं करना है. हर जगह flex doesn't really get you any money. तो it came up with soft skills कि आप अपनी communication skills develop करो, आप अपनी brainstorming skills develop करो, but really nothing more than that. So what I figured out is that just do something, acquire a skill that you do something that you love to do. Okay, the thing is that as soon as you क्योंकि सीने के तुमने कुछ सीख लिया जो कि तुम्हें पसंद नहीं था, but तुम्हें ऐसा लगा कि यार मार्केट के अंदर it's like crazy demand is and मैं इसको सीख लेता हूँ, तो उससे होगा ये कि तुम थोड़े टाइम तो पैसे बना लोगे, लेकिन सीन ये होगा कि eventually you will get exhausted. It is कि you'll be doing that for the money only. It would again become like a job. You would be self-employed, but it's a job. And I mean, that's terrible. I've done that. I've been there, and it feels terrible. It feels कि someone is pushing you to do it. अभी खुद से कोई motivation नहीं है वो करने की. So what I would advise is कि जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो कि acquire करने का skill, make sure that you love it. That तो उससे ये होगा कि even if you're getting paid little ना, you don't have any remorse or regret about it. It's like कि at least I love doing it, even if I'm getting paid little. और इससे ये होता है कि आप time लगाते हो तो eventually you find your money's worth. अच्छा, तो moving onward. अच्छा, building your portfolio. अब सीन इस तरीके का है कि अब you have acquired a skill. आपके पास skill आ गया है. Now it's time to capitalize on it. It's time to start selling it. So what you start to do is कि अगर आप ये चाहोगे कि यार मैं जो है ना वो directly I'll hop on to a freelance platform, chances are that you might find a job, you might land a gig, लेकिन मुझे इस तरीके से लगता है कि that's not really sustainable. So what I suggest all the beginners to do is that once you have acquired a skill, so go to these platforms, go to social media platforms. वहाँ पे जैसे for example Facebook है, वहाँ पे there are many groups like Pakistan freelancer, जो 2-3 इस तरीके के group है. I'll share that with Aska, तो she can share them with you. तो उसके अंदर ये होगा कि आप वहाँ पे जाओ and tell the community that you have acquired the skill and you're trying to build a portfolio and you're willing to do जो आपके पहले 3 task है for free. तो उससे ये होगा people here love free things, they do anything for that. तो उनको नहीं भी जरूरत होगी ना, but वो they'd be like कि फ्री में मिल रहा है उसको ले लेते हैं, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा. तो what they'll do is like they'll come up to you and they'll tell you कि भाई उनकी जो भी requirements होंगी, and since you have the skills, you provide them with your best work. Just forget about that you're not getting paid for that, but put all your heart into it and come up with your best. तो सीन ये होगा कि उनको उनका काम डिलीवर हो जाएगा. दूसरी चीज ये होगी कि आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा. और तीसरी चीज ये दैट पर्सन विल फाइंड आउट कि he'll see कि आपके पास you were not getting paid for it, he was not paying you for that, but you still came up with something so good. तो उसको लगेगा he got value for nothing, he didn't pay anything and he still got so much value. तो imagine करो कि अगर मैं इसको पे करूंगा तो he'll do wonders for me. So that builds a goodwill, and you can showcase that work on the same platform, and then you can start telling people, now I'm charging like a minimum amount of money for that. So that ought to attract people and build your portfolio. And उसके बाद जब आपने ये सब चीजें कर ली हैं तो फिर when you hop on to आपका freelance platforms, so make sure कि you only post your best work there, क्योंकि you cannot always इस तरीके से नहीं होता कि मैं 10 articles लिख रहा हूँ तो या फिर मैं 10 डिजाइन बना रहा हूँ तो I come up with like all 10 of them are excellent.
So learn to identify कि which is your best way. तो सीन ये कि उसके अंदर से जो आपका बेस्ट way है you showcase that on the freelance platform. अच्छा, अब coming to the part कि भाई आपका portfolio build हो गया and you have like sharpened your skills. तो अब you're starting out as a new seller. मान लो कि आप किसी freelance platform के ऊपर आप जो है ना you have hopped onto a freelance platform. So first mistake that people do is कि they're so desperate to do that. What they do is कि they often miss out important details while filling out their profile. तो इस तरीके से होगा कि either तो they won't focus, they won't pay much attention to their bio, या फिर how they're describing their work, how they're describing their skills, या फिर उनकी gig image किस तरीके की है, या फिर ये है कि उनका काम किस तरीके से describe करें. So first and foremost you have to इस तरीके से कि you have to spend a lot of time. उसको एक दफा तुमने एक दिन में बना लिया ना, तो मान लो तुमने एक दिन लगा के प्रोफाइल बना लिया, don't upload it. Go over it again the next day, because there is always room to improve. And you wake up the next day, so you realize कि यार maybe this can be done better, और या फिर ये वाली जो चीज़ थी मैं इसको improve कर सकता हूँ, या फिर मुझे ये वाली चीज़ भी आ सकती है मैं इसको भी add कर सकता हूँ. I have this certain certification, I can add to that. So take your time. Secondly, start small. Don't hop onto a freelance platform and be like I can do everything. ये सब कुछ आता है एंड जो है ना मैं आपको ये भी करके दे दूंगा, मैं आपको ये भी करके दे दूंगा, क्योंकि अब बायर्स आर स्मार्ट, क्योंकि दे आर स्पेंडिंग देयर मनी, तो दे आर नॉट लाइक यार हम लोग किसी को भी पैसे दे देंगे. दे लुक इनटू ईच एंड एवरी डिटेल. डोंट स्टार्ट लाइक कि भाई मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा. उनको लगेगा यार ये अभी तो आया है, इसको एक दिन तो हुआ है, ये सब चीजें कैसे कर देगा. दैट डजंट बिल्ड रिलायबिलिटी और ट्रस्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज बी like start small. उनको ये बोलो कि मैं आपको एक बना के दे दूंगा, मैं आपको दो बना के दे दूंगा, I can provide you with some samples, I can do some pre-work for you. तो उससे ये होगा कि they would know कि यार आप जो है वो नए हो, but you're like willing to work. अच्छा, अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे point number 3 पे, that is be flexible. तो often इस तरीके से होता है कि when you start out as a new seller ना, तो the buyers know that you're a new seller and they try to work out deals with you and they're like कि भाई हमें ये भी करके दे दो इतने पैसों में, हमें ये भी करके दे दो, and जो है वो हमें revisions extra दे दो, and जो है इसमें keyword research भी कर दो, या फिर if you're designing तो they're like कि हमें revisions ज़्यादा दे दो, and they would be like you know there are like for a lot of edits, or they would ask for you know इस तरीके से कि हमें more than one variant show कर दो, like color changes, size changes, but depending upon that work you're doing, इस तरीके से होता है कि they ask you for stuff. So when you're starting small, so have room for that. Be flexible. Know that कि you have basically a lower hand right now. आप जो है वो अभी you're starting small, you're starting new. So be flexible. उनको बोलो कि सही है, मैं आपको ये भी करके दे दूँगा, मैं आपको ये भी करके दे दूँगा, और just be generous थोड़ा सा. If a buyer is unsure about you, offer them free work. Tell them कि I'll do it for you इस तरीके से, and if you like it, तो फिर आप एक काम ही करना कि आप जो है वो अगली दफा से मेरे पास ऑर्डर प्लेस करना. I'm going to give you a small example for that. अभी इस तरीके से होता है, like कुछ टाइम पहले की बात है. A buyer came to me and she came for a script actually. But she was telling me that she can't find like a thumbnail designer in the market, and पता नहीं क्या उसके साथ शायद स्कैम वगैरह भी हो गया था. गाइस स्कैम नहीं करना प्लीज, पाकिस्तानी मार्केट में ऑलरेडी बहुत खराब है, डोंट डू दैट. और तो कमिंग टूवर्ड्स इट के तो उसने मुझे बोला कि यार थंबनेल वो नहीं मिल रहा है. तो although I do designing, लेकिन I was not offering those services for specific freelance platform पे. So अच्छा, her name was Emily. So I told her that Emily, I can design a thumbnail for you, and easy scene है, कोई बात नहीं है. And she told me कि तुम जो है वो thumbnail कितने चार्जेस देते हो. अच्छा, I was not aware कि कितने चार्जेस होते हैं thumbnail के उस स्पेसिफिक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि चार्जेस वेरी फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म. सो आई टोल्ड हर, क्योंकि मतलब मैंने एक कैलकुलेशन करी यार मुझे कितना टाइम लगेगा, मेरा कितना एफर्ट लगेगा, एंड being थोड़ा सा extravagant, I told her कि I'll charge $25, and I thought ये भी शायद कम थे. तो बट खैर उसने बोला कि सही है, इजी सी ना.
तो लेकिन मैंने उसको ये बोला क्योंकि आई वाज अनश्योर, क्योंकि मैंने उस प्लेटफॉर्म पे कभी काम नहीं किया था, तो मैंने उसको ये बोला कि इफ यू लाइक ऑर्डर इन बल्क, आई विल जस्ट गिव यू अ डिस्काउंट, इफ यू लाइक ऑर्डर 5 टुगेदर, आई विल जस्ट मेक देम फॉर यू फॉर लाइक $100। तो बट उसने, मैंने उसको बोला क्योंकि आई वाज अनश्योर अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने उसको इस तरीके से बोला कि आई विल जस्ट मेक जो first thumbnail है just for free, and if you like it so then you can order like a pack of 5 or something like that. तो उसने बोला yeah sounds good, and उसने but she was like, Emily was a nice woman, and she told me कि नहीं, I want to pay you for this specific month, and what if कि अगर मुझे वो जो तुम्हारा पहले वाला thumbnail है free वाला, what if I like it, what if I want to pay for it? So I became adamant, no, you don't have to pay for it, I'll just give it to you for free. तो सीन ये हुआ कि I designed the thumbnail and I gave it to her and she loved it, and she was like yeah, let's do another pack of 5. And then later I went to research on the specific freelance platform के लोग actually में thumbnail कितने का बेच रहे हैं, and the starting price was like $5 and the average price was like $15. So having no experience about that, having ever done that on the platform, I was able to score that same thing doing that for the first time for $20. Why? Because I was like just a little generous in the beginning. I was a little flexible, and I was like there to make goodwill. So establishing goodwill with your clients is very important. क्योंकि हो ये सकता है कि आगे जाके आप रेट्स बढ़ाओ and उनको कुछ कम में वो चीज ऑफर कर रहा हो, but they would still come back to you because they know that you have integrity and you're an honest guy. So they come to you not for your skills but for your goodness. So that is important. अच्छा, be professional इस तरीके से होता है अक्सर कि they would offer you कि भाई आप जो है ना, वो अक्सर होता है, ये very common, they tell you कि भाई प्लेटफॉर्म के बाहर आ जाओ, and they send you documents with their WhatsApp numbers in it, and they tell you कि इस तरीके से कर लेते हैं, उस तरीके से कर लेते हैं, मैं आपको इसमें पेमेंट कर देता हूँ, मैं आपको इसमें पेमेंट कर देता हूँ, and same goes for sellers do that also. तो सीन ये कि हो ये सकता है कि आप अपने जो प्लेटफॉर्म के चार्जेस हैं आप उनको कट कर लो, बट देयर आर हायर चांसेस ऑफ स्कैम्स, वो बाहर जाएंगे, यू हैव नाउ नो गारंटी, क्योंकि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर योर पेमेंट गेट्स लॉक्ड प्रायर टू द ऑर्डर, मैंने ऑर्डर प्लेस करा, योर पेमेंट इज लॉक्ड एट द प्लेटफॉर्म, तो ना वो बायर के पास ना आपके पास, as soon as you deliver your work, he approves it, you get the payment. तो सीन ये है कि आई रेकमेंड, मतलब मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई रेकमेंड पीपल नॉट टू गो आउट ऑफ इट. आप बाहर दूसरे क्लाइंट्स ढूंढ लो, लेकिन प्लेटफॉर्म वाले क्लाइंट्स को बाहर लेकर आना इज अ बिग रिस्क. इफ यू विलिंग टू डू दैट, इतना जिगरा है आपके पास, दिल है कि आप एकदम से जो ना $150-200 आपके निकल गए, आपने पूरा काम डिलीवर कर दिया, सो डू दैट, क्योंकि फिर सीन है कि आप वहाँ से पैसे बचा लोगे, लेकिन अगर आपको लॉस हुआ तो वो फिर थोड़ा सा बड़ा लॉस होगा. एंड 6 इज लाइक स्टे कंसिस्टेंट. इस तरीके से होता है, लोग है पीपल आर लाइक यार हमें जो है ना, वो जो ना पूरे जो है ना 3 दिन हो गए कोई ऑर्डर नहीं आया, पीपल आर लाइक 6 घंटे हो गए, 6 घंटे में कोई ऑर्डर नहीं आया, एंड वी आर लाइक वर्किंग रियली हार्ड, एंड आई एम लाइक यार डूड यू लाइक, तो सीन इस तरीके होती है, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, बट you're not the only one. There are like thousands of sellers on that marketplace. So you have to stand out इस तरीके से कि you get the order. You have to be थोड़ा सा patient. I know people जिनके एक ही दिन में order आया, and I know people जिनके 6-6 महीने में order आया. I promise you that once you get started, after your first 10 orders, there is potential in that market. So लोगों को profiles बनाने में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है, लोगों को consistency का बहुत मसला है. कुछ भी नहीं है ना, बट स्टिल आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, बट आई रिकमेंड पीपल टू स्पेंड एटलीस्ट 1 hour एवरी डे, इफ नॉट 1 hour, एटलीस्ट 30 minutes ऑन दैट प्लेटफॉर्म एवरी डे. आप जाओ, दूसरे सेलर्स को देखो, सी व्हाट दे आर ऑफरिंग, सी इफ यू कैन इंप्रूव योर गिग, सी के मार्केट में क्या चल रहा है. Nowadays these marketplaces have their courses, own courses कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म में किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. So do that. There are endless resources to learn. So this is like just an excuse कि यार हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहा तो हमने छोड़ दिया, हमने 3 महीने किया हमने छोड़ दिया, 1 महीने किया हमने छोड़ दिया. Don't do that. Stay consistent. Be patient. Have faith. अच्छा, सीन इस तरीके का है कि how to stand out. I think I थोड़ा सा miscalculated, and हमने जितना भी वो वाला I forgot कि मेरी अगली वाली स्लाइड क्या थी, तो I covered the whole content how to stand out वाला.
in the पिछली वाली slide. So mainly again content वही है इस तरीके के, how you have to optimize your profiling gig. वहाँ पे जाओ and see, तुम Fiverr पे जाओ and देखो कि भाई लोग services किस तरीके की दे रहे हैं. आप Fiverr पे जाओ and you search for a gig and you see उनकी profile उनकी gig images. जो Fiverr पे गए हैं they know that. They know what I'm talking about. कि आप उनके जाओ and it seems like कि उनकी जो gig image है ना, it has been made by and it seems like कि उनकी जो gig image है has been made by आपका like a 7-year-old, 10-year-old. मतलब आप basic paint पे जाओ ना तो आप शायद उससे बेहतर बना लो. They don't have any sense कि भाई font क्या use करना है. They don't have any sense कि images क्या use करनी है. People are not using royalty free images. I know people जो मैं वहाँ पे जाता हूँ, हानिया मेरी तस्वीर लगाई हुई है किक के ऊपर. How is that relevant? How are you even doing that? And they are getting ordered क्योंकि apparently people, कुछ buyers होते हैं इस तरीके के, they don't see कि भाई potential क्या है या फिर क्या scene है, but they're like कि इसके ऊपर लड़की की तस्वीर लगी हुई है and this guy is, you know, has something special they can offer. So don't do that, guys. शायद shorter run में आपको ये चीज help करे, but in the longer run, trust me, it's not successful. कभी भी देखना Fiverr Pro verified sellers या फिर जो recommended sellers होते हैं वो इस तरीके का काम नहीं कर रहे होंगे. You see and you immediately know that this is a professional. So don't do that. Don't use Anya, Amer or Jennifer Lopez or anything like that. Use your own image if you have to. और तो do that, मतलब stand out इस तरीके से कि use a good gig image. अपनी जो gig है उसको वैसे ही optimize करो और go an extra mile always. Always be like कि be मतलब I'll give you another example of a client. एक client था मेरा जो कि has been ordering for a very long time. And एक से दो दफा इस तरीके से हुआ कि उसने जो है ना मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी गलती से जो कि he didn't need. And जाहिर सी बात है उसने ऑर्डर प्लेस करा for that script. मैंने उसको ऑफर भेजी, he accepted that and I did that script. उसने मुझे बाद में बताया कि I'm so sorry, मुझे ये वाली स्क्रिप्ट नहीं चाहिए थी, I gave you the wrong topic. And if I could have, मतलब मैं उसको बोलता कि यार now I wrote that script, मतलब I mean you have been charged, so you have to place a new order. And he was willing to do that. He was like यार मैं नया order place कर दूँ, कोई ऐसी बात नहीं है. But I told him no, it's okay. You have given me like 50 orders or 100 orders in the past year, so it's fine. I can, like, if you have placed so much faith in me, I can cut a little slack for you. So इससे कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि उनके दिल में आपके लिए जगह बढ़ जाती है. And even though मुझे पता है कि मैं आगे जो है वो उसको मार्केट से ज़्यादा चार्ज करने वाला हूँ, $25 $30 भी शायद एक छोटी सी चीज़ के लिए चार्ज करने वाला हूँ, but I know he'll stay. क्योंकि मैं honestly बताऊँ तो मुझे अपने किसी क्लाइंट से मोहब्बत नहीं है. I'm not looking for love on freelance platforms. If I wanted that, I'd go on Tinder. लेकिन I am here क्योंकि I know कि आज मैं इनको थोड़ा सा slack cut करूँगा, so tomorrow they'll do the same for me. So at the end of the day, the ball is always landing in your court. It's that के how you are playing your balls. It's like आप short term पे नहीं सोचो कि यार मैं अभी $20 निकाल लूँगा. आप अगले order के $200 के बारे में सोचो, $500 के बारे में सोचो. That is important. Think big. And like coming to closing the session almost, so I put up this meme. So मतलब people are saying कि यार jobs नहीं है and things like that, and हमसे ये नहीं हो रहा, and मुल्क की economy fuck हो गई है, डॉलर का रेट देखो and ये सब चीजें. I am happy with the dollar rate progressing because the remittances are like 350. If the dollar goes at 350, just imagine जो मेरे $100 एक 2 साल पहले I used to make 15,000, I'd be making 35,000 out of it. So like look at the silver lining. See के आप किस तरीके से जो आपके पास at hand resources है उनकी किस तरीके से आप maximum utilization कर सकते हो. So you are the one who is the problem. It's always you. It's like you step out of a comfort zone, discipline your life, and spend time on it. किसी चीज के ऊपर टाइम नहीं लगाओ कि nothing can come out of it. You can make nothing of yourself. So जो अब लोग बड़े हो चुके हैं and they're like they might have been, you know, not so active in their youth maybe.
there's always room to grow. So abhi, I believe most of you are like under your 20s maybe. So this is the best time. अभी आप mainly अपने parents के ऊपर rely कर रहे हो. You have nothing much to lose. There is so much room to take risk. And अगर कोई भंड हो भी जाता है तो क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा. मतलब मैं हमेशा यही सोच के करता हूँ, कोई भी चीज़ रिस्क लेता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा. And I always learn कि बहुत कुछ नहीं होगा. Nothing I can't handle. And have faith in God. कि कुछ भी होगा, He is like looking after you. उसने आपसे रिस्क का वादा किया. So it is that, but that again doesn't mean that you have to put in effort. You have to. मतलब आप अपना maximum effort put in करो. बाकी like वो देख लेगा यार. Easy सी. And again, a quote by a person that really inspired me is that कि I cannot always control what goes on the outside. मतलब तुम नहीं control कर सकते कि यार इमरान खान जो है ना वो अपनी कोठी से निकलेगा या नहीं निकलेगा, नवाज शरीफ जो है वो गिरफ्तार होगा नहीं होगा, या मुल्क डॉलर रेट नीचे जाएगा नहीं जाएगा. You can't control that. You don't have that power. But what you can really control is कि तुम अपने दिन के कितने घंटे प्रोडक्टिविटी में निकाल रहे हो और कितने घंटे जाया कर रहे हो. तुम अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट कर सकते. So that is a thing that is super important. तो बाकी आप सब कुछ समझदार हैं, यही सीन. So that's all guys. I hope that this session was useful to you guys. I hope I did not waste your time. And feel free to ask questions if you have any. I have dropped my Instagram and WhatsApp number here. Not that in the profile in the followers check. It's that you can reach out to me to ask questions. And also on WhatsApp. और बाकी ये है कि बस just mention as a reference कि अगर आप WhatsApp reach out करो कि we're from the section that मेरे को that who you are. So shoot. Omer, I have a question actually. I wanted to ask कि शुरू में you mentioned कि शुरू में you have to be very flexible, and I completely agree with all of that. But क्या आपके साथ कभी ऐसा like scam वगैरह हुआ in which you were flexible and you were generous, but then जो आपको जो भी response मिला it wasn't faithful, like your client wasn't faithful to you, या फिर इस किस्म का like कोई भी mishappening हुई है आपके साथ during your freelancing journey, and how did you respond to that? Yeah, I have two stories for that. एक इस तरीके से हुआ था कि क्योंकि जाहिर सी बात है मैं छोटा सा था, थोड़ा नाइव था, and इस तरीके से हुआ कि a client came to me with like a promising goal, क्या कहेंगे उसको, एक like a promising gig, and it sounded like huge. कि I was like यार मैं एक महीने के अंदर कुछ नहीं like $500 तो कहीं नहीं है, and I was like 17, 18 at that time, and that meant big to me. So I spent a lot of time on calls and meetings with her, and I invested like a lot of time there कि यार eventually जो ना यहाँ से order आ जाएगा. And she was like कि यार मुझे e-book चाहिए and वगैरह वगैरह. मैं छोटा वो बोली थी मेरी जिंदगी के ऊपर e-book लिख दो, and I was like I was very naive. I thought कि this can really happen. तो वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा time गया. So this happens. Again, one scam that very commonly happens ना is कि a client comes up to you and मतलब ये तो अभी तक होती है ये चीजें. It's like आप stop falling into that. वो आते हैं and वो बोलते हैं कि भाई मान लो that you're offering something like for $50, and they'll come up to you and they'll tell you कि भाई जो सीन इस तरीके का होता है कि अगर आप एक यूनिट $50 का ऑफर कर रहे हो, so if you're like offering 10 of it, so you give like a 10% discount or 20% discount. So buyers know that, they're smart. So they come up to you and tell you कि भाई हम जो है ना अभी वो एक यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं आपका काम किस तरीके का एंड वगैरह वगैरह. एंड they tell you कि भाई हमें जो है ना ये अभी वो $25 के दे दो, and I'll give you like hundreds of orders, like 50 orders बिल्कुल right away lined up है, and जैसे ही आप डिलीवर करोगे ना तो 50 ऑर्डर के मैं आपका डायरेक्ट वो प्लेस कर दूंगा. Don't fall for that. That never really happens. बहुत rarely इस तरीके से होता है कि सही चीज होती है. तो आप इस तरीके से ये करो कि आपको ये बोलो कि मैं आपको सैंपल डिलीवर कर देता हूँ छोटा सा, don't pay me for that, and if you like my work तो फिर आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करो. So that's like a thing that commonly happens, and that's one way to tackle it. I hope that answers the question.
Anybody else has any questions? मुझे बस एक बात ऐड करनी थी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल। एक स्कैम ये वाला भी होता है कि वो आपसे कहते हैं कि आप जो है ना XYZ सम अमाउंट ऑफ मनी यू पुट इट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जब आप अपना काम उनको दे देंगे लिख के तो वो आपको दे विल रिटर्न दैट मनी टू यू, सो नेवर डू दैट। मेरे साथ नहीं हुआ, बट सम पीपल वेरी क्लोज टू मी हैव सफर्ड दैट एज वेल। तो अगर आपसे कोई भी कह रहे हैं कि आप पैसे रखवा दें उनके पास, तो नॉट सेफ, दैट्स अ स्कैम। No one is supposed to charge you money for working for them. It's the other way around. Figure that out, guys. बहुत simple concept है, लेकिन but people fall for that every day. They're like 10,000 रुपए डिपॉजिट कराओ, हम 50,000 रुपए का काम देंगे। तो आप एक काम करो, आप उनको बोलो कि आप मुझे महीने के एंड पे 40,000 रुपए देना। Easy सीन है। So don't fall for that, guys. Does anybody else have questions? सही है, good सीन है। बाकी I have got my contacts here, so if there's anything you can reach out to me. अच्छा सही है। अब फरजान मेरे साथ ही है, basically we're in the same office, so he'll join from this same computer. Give me 5 minutes. डोमेन होस्टिंग वगैरह सब आपको जरूरत नहीं है। होस्टिंग जो है ना बहुत अच्छी होस्टिंग खरीदने की, आप थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड ले लें, थोड़ी सी जो है ना वो कहूँगा कि सस्ती वाली ले लें, मगर आप होस्टिंग ले लें। ठीक है, ना होने से तो बेहतर ही, जीरो से बेहतर है। तो अपने आप को ब्रांच आउट करें, सिर्फ अपर फाइबर तक ना रहें, क्योंकि अपर फाइबर जो है ना वो आपकी अपनी जगह नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे जो है ना वो कहूँगा कि बोरोड टाइम पे आप वहाँ पर हैं। हो सकता है कि कल जो है आपका अपर निकाल दें, आपको बोले कि आपकी जो है ना प्रोफाइल ब्रीच हुई है, कोई पॉलिसी आपने ब्रीच करी है। ठीक है, आप अपील तो कर सकते हैं, मगर हम सबको पता है अपील जो है वो इतनी जरूरत होती नहीं। अपने आपको ब्रांच करें, अपना पर्सनल ब्रांड बनाए, ताकि आपका जो है ना वो लॉन्ग टर्म पे ये फ्रीलांसिंग रहे। इसके बाद जो है वो बात आती है कि रिटेन कैसे करते हैं क्लाइंट्स जो है ना। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली अगर हम फाइबर की बात करें, ठीक है, हम लोग अगर freelancer.com की बात करें, पीपल पर आर की बात करें, तो वहाँ पे लोग आते हैं सिर्फ एक दफ़ा चीज़ खरीदने के लिए। वहाँ पे लोग आते हैं, जैसे कोई अगर आपके पास जो है ना थंबनेल बनवाने के लिए आया, तो आपको उसने सर्च करा, ठीक है, थंबनेल आर्टिस्ट थंबनेल, वहाँ पे सर्च करने के बाद उसने आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करा, वो आपको जो है ना एक हो सकता है ऑर्डर देते हैं, 2 ऑर्डर देते हैं, 3 ऑर्डर देते हैं। आपके पास वो ना लॉन्ग टर्म ऑर्डर के लिए नहीं आते। लॉन्ग टर्म के लिए जगह कौन सी? लॉन्ग टर्म के लिए अपवर्क है, ठीक है, गुरु है, ये अपवर्क, ये लॉन्ग टर्म काम के। तो आपके पास जब भी क्लाइंट आ रहा है ना, तो जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन एलिमेंट जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। आप रिलेशनशिप बनाए अपने क्लाइंट से, ठीक है, आप उनको डिस्काउंट्स दें, ठीक है, आप उनकी बात कंसीडर करें। बहुत दफ़ा ये होता है कि क्लाइंट आता है, उसको पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए, बाकी बोलता है कि यार मेरा जो है ना ये ब्लॉग है, इस चीज़ के बारे में लिखता हूँ, टॉपिक जो है ना वो आप बताएं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, तो आप टॉपिक बताएं कि यार मुझे ना आजकल ये चल रहा है कि टॉपिक जो है ना बहुत अच्छे हैं, ये चल रहे हैं टॉपिक, तो हम बताएं कि यार ये ना बहुत हॉट टॉपिक चल रहे हैं, आप इनमें से जो है ना ये बना लें, ये नीश जो है बहुत हॉट नीश चल रहे हैं, इनमें से जो है ना आप ये टॉपिक कंसिडर कर लें। तो आप ह्यूमन एलिमेंट रखें, बैक एंड फोर्थ होगी ऑब्वियसली। इससे क्या होगा, इससे जो है ना वो एक रिलेशनशिप बन जाती है, बात करने से जो है ना वो ऑब्वियसली रिलेशनशिप बन जाती है। क्लाइंट जो है ना वो याद रखेगा, यार फरजान जो था ना उसके बाद में गया था, तो उसने मुझे टॉपिक भी बता दिया, उसने मुझे ना पूरा का पूरा ब्लॉग भी लिख के दे दिया, और उसने जो है ना पब्लिश भी कर दिया मेरी वेबसाइट। तो ही इज वन आई कैन ट्रस्ट, ठीक है, आई कैन रिलाई ऑन। रिलेशनशिप बनी हुई है तो जो है ना दिल में आपकी जगह है। अगली दफा जब काम देना होगा वो आपके पास ही आएगा, वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। हो सकता है आपके जो है ना वो आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो वहां पर आ जाए, ठीक है। ट्रस्ट बन गया है तो वो पर्सनल ब्रांड पे आ जाएगा। ट्रस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ट्रस्ट के अलावा, ट्रस्ट के बगैर जो है ना मैं आपको काम दूंगा, ना मैं आपसे काम करूंगा। सही है, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि स्कैम बहुत होते हैं, ठीक है, स्कैम हर जगह हो रहे होते हैं, हर वक्त होते हैं, सेलर के साइड से भी हो रहे होते हैं, बायर के साइड से भी हो रहे होते हैं, हर तरफ से स्कैम होते हैं। आज की दुनिया के अंदर जहाँ पे इतने सारे सेलर हैं, रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि आपने जो है ना वो एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला कि यार ये ना स्क्रिप्ट है 10 मिनट की, ये लिख दो, मैंने लिख दी। बस 2 चॉइस है, ठीक है, या तो आप उसको स्क्रिप्ट दे दो बिल्कुल ऐसी एज इट इज, या फिर आप उसको ना एक एड ऑन भी दो, एक्स्ट्रा चीजें दो। ऐसी चीजें क्या हो सकती है कि हो सकता है आपके पास ई बुक हो, ठीक है, जो आपने खुद लिखी है, जिसके अंदर आपने बताया हुआ कि यार यूट्यूब पे जो है ना वो सक्सेसफुल कैसे होता है। आप जो है ना उनको यूट्यूब ऐसा फ्री भी दे, ई बुक जो है ऐसा फ्री भी दे दो, बोला ठीक है, उनको
बोला कि आपने स्क्रिप्ट लिखवाई है, थंबनेल मैं बना दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे क्या होगा कि इससे जो है ना वो इंसेंटिव हो गया क्लाइंट के पास, कह रहे हैं कि यार मैं अगली दफा आऊंगा ना तो फिर दोबारा इसी से खरीदूंगा, फरजान से खरीदूंगा, फरजान मुझे जो है ना वो इंसेंटिव देता है दोबारा आने का। आप ये कर सकते हैं कि क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया एक स्क्रिप्ट का, आप उनको बोलो कि यार मैं जो है ना इसका थंबनेल बना दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये यहाँ पे मैं जो है ना अगली 5 स्क्रिप्ट्स जो है उसके अंदर आपको डिस्काउंट दे दूंगा, या मैं जो है ना अपलोड करके इसके जो एसईओ टैग्स हैं वो मैं इंक्लूडेड है इसके अंदर, मैं फ्री में दे दूंगा। तो आपके जैसे जो है ना वो 1000 सेलर्स चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन अगर आप 1000 वर्ड की जो है ना वो एक ब्लॉग लिख रहे हो तो आपके साथ 1000 सेलर और भी लिख रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। व्हाट सेट्स यू अपार्ट इज योर इंसेंटिव्स, ठीक है ना। आप क्लाइंट को क्या इंसेंटिव दे रहे हो आपसे खरीदने के, आप उनको क्या डिस्काउंट दे रहे हो या फिर उनको क्या अलग से दे रहे हो अपने ब्लॉग पोस्ट के अलावा। तो ये इंसेंटिव बहुत जरूरी होता है इफ यू वांट टू रिटेन क्लाइंट्स। क्लाइंट को आप डिलीवर कर दो ऐसी कोई मसला नहीं है, क्लाइंट अगली दफा जो है ना वो नहीं आएगा आपके पास, हो सकता है आ जाए मगर वो जो है ना वो उससे अगली दफा नहीं आएगा। अगर आप इंसेंटिव दे रहे हो, आपकी रिलेशनशिप बनी हुई क्लाइंट्स के साथ, तो वो बार बार आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइंट का ब्लॉग तो है, चैनल है, जो भी है, तो आप उसको जो है ना वो बार बार अपलोड करना ही करना है। इसके बाद आता है कि फॉलो अप। आपने जो है ना वो एक ब्लॉग पोस्ट थी, आपने जो है वो डिलीवर कर दिया, आपने कहा कि भाई मामला खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसा नहीं है, आप जो है ना उनको फिर 1 हफ्ते बाद 2 दिन बाद उनको फॉलो अप लो, उनको बोलो कि यार मेरे जो काम भेजा आपको सही लगा, कोई मसला तो नहीं था उसके अंदर, कोई मसला था तो मुझे बताएं। मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर ये करता हूँ कि क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप कभी भी कोई मसला हो सकता है आपको जो है 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, आप मेरे पास चैट के अंदर आए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके दे दूँगा, कोई मसला ही नहीं। एडिट्स जो है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। तो इस तरह क्या होता है, फॉलो अप होती है, क्लाइंट को अपने पीस ऑफ माइंड हो गया कि कोई मसला होता है, कुछ भी होता है, मैं फरजान के पास दोबारा आ सकता हूँ, वो मुझे जो है ना वो सही कर देगा, वो हिल टेक केयर ऑफ। तो इससे जो है ना मैं अपने आप को मार्केट से जो है ना अपार्ट दिखा रहा हूँ। आप फॉलो अप लो कि मैंने जो आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कितने व्यूज आए उसके ऊपर, कितने लाइक्स आए, आपको क्या लगता है कि आप क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे, क्योंकि चैनल तो क्लाइंट का ही है ना, वो बताएगा वो क्या इम्प्रूव करना चाहिए। आप जो है ना वो उनसे ये पूछो कि आपके चैनल के अंदर जो है मैं आपको जो है ना वो थोड़ी टिप दे सकता हूँ कि ना आप ये करो वो करो, इससे आपका चैनल जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। क्लाइंट भी भूल जाता है, आपको ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया, आपको हो सकता है क्लाइंट भूल जाए, आप भी क्लाइंट को भूल जाते हो, लेकिन आपके पास जितने क्लाइंट आ रहे हैं रोजाना, आप सबको नहीं याद रख सकते। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। आप उनसे बार बार जो है ना वो 1 महीने बाद चले आपके लिए फॉलो अप करते, 2 महीने बाद पहले 3 महीने बाद उनसे आप पूछें कि और आपका चैनल सही चल रहा है नहीं चल रहा, मैं और स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, आपके नहीं लिख सकता, इस तरह से फॉलो अप करना। आखिरी पॉइंट जो है ना वो ये है कि ऑलवेज बी रिलायबल। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि फरजान इज अ पर्सन दैट आई कैन ट्रस्ट, ठीक है, कभी भी आए मेरे पास उसको पता होना चाहिए कि मैं जो है ना वो उसको बेहतरीन काम दूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं करूंगा कि कुछ लोग, कुछ सेलर्स इस तरह से होते हैं, वो क्या करते हैं, शुरू की जो स्क्रिप्ट है वो बहुत बेहतरीन, ठीक है, शुरू का ब्लॉग पोस्ट बहुत बेहतरीन, इसके बाद जो है ना फिर क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होने लगती है, ठीक है। ह्यूमन नेचर है ये, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ अगर रोजाना होने लग जाए तो आप जो है उनसे आपको एक तरह से रूटीन बन जाती है, और फिर रूटीन के अंदर जो है वो फिर आपके जो है ना वो मसले होने लग जाते हैं। तो ऑलवेज भी रिलायबल। क्लाइंट को पता होना चाहिए कि अगली स्क्रिप्ट भी बिल्कुल सेम जैसी होगी जैसे आज की थी, वही क्वालिटी होगी, हो सकता है और इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि अगर फरजान ने एक दिन में एक स्क्रिप्ट लिखी थी तो अगर 1 महीने बाद आएगा तो भी 1 दिन में एक स्क्रिप्ट लिख देगा, ठीक है। अगर नहीं लिख सकते तो आप उनको बताएं, ठीक है, उनसे आप कम्युनिकेशन रखें हमेशा कि कोई मसला हो रहा है आपको, ठीक है, आपको मसला हो रहा है क्या स्क्रिप्ट में नहीं मसला आ रहा है, ब्लॉग पोस्ट में मसला आ रहा है, फॉरन कम्युनिकेट करें क्लाइंट के साथ। क्लाइंट को खुद बहुत नहीं पता चलेगी बात, आप उनको बताएंगे तो पता चलेगी बात, ठीक है। हो सकता है क्लाइंट के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, आप लोग सेम पेज पे नहीं है। जब तक आप सेम पेज पे नहीं होंगे तब तक जो है ना वो क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा और आपकी स्क्रिप्ट जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमेशा बी ऑन द सेम पेज। ये क्लाइंट को पता होना चाहिए ऑलवेज कि वो आपसे जो काम ले रहा है, आपकी जो स्क्रिप्ट दी हुई है, जो ब्लॉग पोस्ट दी हुई है, एग्जैक्टली उसको क्या मिलेगा वापस, ठीक है। तो इस तरह से उसकी एक्सपेक्टेशन भी मैनेज हो रही है और उसको पता है कि इतने दिन बाद, इतने टाइम बाद जो मुझे स्क्रिप्ट मिलने वाली है, इससे मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपसे थंबनेल बनवा रहे हैं, आपसे कोई पोस्टर बनवा रहे हैं, ठीक है, आप उससे कम्युनिकेशन में रहें, उनसे बोलें कि यार अच्छा मुझे जो है ये पोस्टर के अंदर मैं ये वाली इमेज डाल दूँ। हो सकता है क्लाइंट को वो इमेज नहीं चाहिए, वो आपसे बोलेगा ये वाली इमेज नहीं, यहाँ से ले लो इमेज, ठीक है, ये फॉन्ट इस्तेमाल कर लूँ,
हमेशा उससे जो है ना कम्युनिकेशन, क्लाइंट को भी लगेगा कि यार ये जो है ना ये काम कर रहा है मेरा और ये जो है ना इंथुजियास्टिक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं ethical issues। आज के ज़माने के अंदर जो है ना, आज के टाइम के अंदर बहुत सारे मैं कहूँगा कि सेलर्स ऐसे हैं जो बहुत नॉन एथिकल चीज़ें करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे उमर ने बताया, ठीक है, एक की इमेज के अंदर जो है ना वो सेलिब्रिटी फोटोज लगी हुई होती हैं, आपके जो है ना वो किसी और की किक से जो है ना आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी करके अपने पे लगाया होता है, थोड़ा बहुत चेंज करके ताकि पता ना लगे किसी को। तो बहुत चल रही होती है आजकल। आपको जो है ना अपना स्टैंडर्ड हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। आप जो है ना ये नहीं कर सकते कि यार सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, ये कोई एक्सक्यूज नहीं। पहले हम लोग बात करें तो एआई का क्योंकि दौर है ये, तो एआई जनरेटेड कंटेंट मार्केट में बहुत है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो है ना वो सस्ते पैसों में काम करके दे रहा हूँ, बट पीछे क्या कर रहा होता है, वो एआई जनरेटेड कंटेंट इस्तेमाल कर रहा होता है पूरा का। आपको ये नहीं बोला कि आप एआई से काम ना करवाएं, ठीक है, आप एआई जनरेटेड कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्लाइंट को हमेशा ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लाइंट को आप अपफ्रंट बता दें कि यार मैं जो है ना वो एआई से देता हूँ। अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है कि यार एआई इस्तेमाल नहीं करना और आप पीछे फिर भी एआई इस्तेमाल कर लो, तो ये बात तो सही नहीं है। आप क्लाइंट को बता दो कि यार मैंने एआई इस्तेमाल करता हूँ, मैं पूरा एआई से नहीं लिखवाऊंगा, पूरा चैट जीपीटी से नहीं लिखवाऊंगा, मैं थोड़ा सा आइडिया लेता हूँ, ठीक है ना। मैं या फिर उसका बता दें कि यार एग्जैक्टली ये पार्ट जो है ना मैंने एआई से लिखवाया, क्योंकि फिर डाउन द लाइन क्लाइंट के लिए मसले होंगे। वो क्लाइंट जो है ना फिर आपको तो कुछ नहीं बोलेगा, बाद में जो है ना वो फिर आपसे कभी ऑर्डर नहीं करवाएगा, उसके ना दिमाग में जाएगा कि यार ये जो है ना इससे याद नहीं मिलता है, इसके बाद दोबारा नहीं करना। एआई जनरेटेड कंटेंट आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, मगर क्लाइंट से हमेशा अपफ्रंट रहे इस बात में, अपने आप से भी अपफ्रंट रहे। आप पूरा रिलाय ना करें एआई पे, ठीक है ना। आपकी स्किल्स कहाँ है इसके अंदर, अगर मैं पूरी स्क्रिप्ट एआई से लिखवा रहा हूँ, मेरी स्किल्स कहाँ है इसके अंदर, कोई भी कर सकता है। अपना स्किल्स भी लगाए इसके अंदर आप, और जो है ना वो एआई से हेल्प लेना, ठीक है ना। एआई के वर्क फ्लो को सुपर चार्ज कर देता है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। और क्लाइंट को हमेशा बताना चाहिए। दूसरा इशू जो आता है वो आता है स्किल मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज करो कि मैं जो है ना वो स्क्रिप्ट लिखता हूँ यूट्यूब की, अब मेरा जो है ना एक खास नीश है। मैं सपोज कर लेते हैं कि ना मैं जो हूँ वो इंफॉर्मेशन वाली जो है ना टेक की स्क्रिप्ट लिखता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे जो है ना वो बॉक्सिंग मैच हो रहा है, इस पर स्क्रिप्ट चाहिए। अच्छा, वो अच्छे पैसे ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। मेरे पास अब इंसेंटिव भी आके मैं बोलूँ यार अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, तो लिख दूंगा, क्या जा रहा है, लिख दूंगा मैं, ये भी कर दूंगा मैं, ठीक है ना। एआई लिखवा लूंगा या मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। आप कर तो लोगे ऑब्वियसली, मगर ये स्किल जो ना मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। आपका जो है ये नीश नहीं है, आपके इसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं है। आप क्लाइंट को बता दो कि यार मेरा फर्स्ट टाइम है ये, मैं जो है ना इस टाइप की स्क्रिप्ट लिखता हूँ, बट आई कैन ट्राई, ठीक है। आपको पसंद ना आए कोई बात नहीं, मैं आपको सैंपल लिख देता हूँ, मैं आपको जो है ना वो एक फ्री जो है ना थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, बट आप उसको अपफ्रंट रहो कि यार ये मेरा नीश नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि ना थोड़ा बहुत जो है ना यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं कि यार कि ना ब्लॉग कैसे लिखते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, एंड देन वो बोलते हैं कि हाँ भाई हो गई ट्रेनिंग मेरी, अब मैं आ रहा हूँ फाइवर पे, फुल जो है ना वो मैं पैसे छापूंगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप क्लाइंट को बता दो कि यार मेरा फर्स्ट टाइम है, ठीक है ना। आप क्लाइंट को ये बताओ कि मुझे जो है ना ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और आपको जो स्किल आपको शो रहना कि यार मैं इस स्किल का मास्टर हूँ, यानी कि स्किल जो है ना मुझे मैं कहूँगा कि अच्छा आता है, मैं काम कर चुका हूँ, मुझे ये स्किल जो है ना बहुत अच्छी आती है। आप वो ऑफर करो क्लाइंट, ये तो क्लाइंट जो है ना आपको पैसे दे रहा है, क्लाइंट जो है ना आपसे एक एक्सपेक्टेशन लगा के आपको पैसे दिए, उसने कहा है कि यार मुझे जो स्क्रिप्ट मिलेगी वो बेहतरीन क्वालिटी की होगी, जो जिससे मैं करवा रहा हूँ वो मास्टर है अपनी फील्ड का। आप अपने स्किल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, आप हमेशा अपफ्रंट रहें कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ और एग्जैक्टली क्या आपको मिलेगा। इसी बात ये आती है कि आप हमेशा ये याद रखें कि इंडिविजुअल लेवल पे तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, ठीक है। आप जो है वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट, आपने खराब ऑर्डर दिया, ठीक है ना, आपने एक स्क्रिप्ट ऐसी कहीं से प्रेगराइज करके दे दी, तो चली गई, मगर वो जो है ना वो सेलर जब भी देखेगा ना क्लाइंट कि यार इसने जो है ना पूरा जो है वो पैसा छापा है, तो वो उसका, आप तो खैर एक इंडिविजुअल है ना, उसमें आपका नाम भी नहीं याद रहना, वो बोलेगा कि ये सेलर जो है ना पाकिस्तान से था, पाकिस्तान में सब होता ही ऐसे, पाकिस्तान से कभी ऑर्डर ही नहीं कराना मुझे। ये बहुत होता है यहाँ पे, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि चीजें तो दे रहे हैं, मगर वो क्या कर रहे हैं, वो या तो अपनी जो है ना वो प्राइस बहुत कम रखी हुई उन्होंने। आप चाहेंगे भी अभी जाए फाइबर के ऊपर, ठीक है, 5000 वर्ड्स का ब्लॉग लिख रहे हैं कोई $5 के अंदर, आपको पता है कैसे लिख सकता है, टाइम लगता है, ठीक है, मेहनत लगती है, मैं तो कभी ना करूँ $5 के अंदर, तो अब वो लिख तो देगा, ठीक है, जैसे तैसे करके लिख देगा,
अब क्लाइंट एक्सपेक्टेशन क्या बनाएगी कि यार ये 5000 वर्ड्स का जो है ना बेहतरीन आने वाला है ब्लॉग मेरे पास। अब वो ब्लॉग खोलता है एकदम बेकार, इसके अंदर जो है ना प्लेगरिज्म हुआ हुआ है, ठीक है, वो अपलोड करता है, 2 दिन बाद जो है ना गूगल स्ट्राइक डाउन कर देता है, EMC स्ट्राइक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। अगली दफा जो है ना वो आपसे नहीं ऑर्डर कराएगा, अगली दफा वो पाकिस्तान से ही नहीं ऑर्डर कराएगा, ठीक है ना। वो बोलेगा कि यार पाकिस्तानी होते ही ऐसे, पाकिस्तानी जो है ना वो करते ही स्कैम है, जो भी है एक्सेट्रा। तो हमेशा याद रखें कि आप जो है ना वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करते, आप जो है ना वो कलेक्टिव लेवल पे काम करते हैं। जैसा कि अभी बात करी मैंने कि $5 के 5000 वर्ड्स लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा ना करें। आपसे बोलूंगा कि ऐसा ना करें, इससे जो है ना वो फिर एज ए कम्युनिटी सब जो है ना वो हर्ट होता है। आप जो आपने रिव्यू लेने के लिए तो काम कर दिया, ठीक है ना, आपने बोला कि ना मैं $5 के अंदर 100 वर्ड लिख दूंगा, 2000 वर्ड लिख दूंगा, सिर्फ रिव्यू लेने के लिए। आपने कहा कि यार मैं जो है ना वो आपकी ये भी काम कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, रिव्यू लेने के लिए। ऐसा ना करें, आप जो है ना अपने आप से हमेशा ट्रू रहें, रिव्यू बेटिंग ना करें। आप उनसे बोलें कि मैं जो है ना ये मेरी स्किल्स हैं, मैं ये जानता हूँ कि ना मेरा अगर मैं टाइम लगा रहा हूँ 1 घंटा लगा रहा हूँ 1000 वर्ड्स के ऊपर, तो वो 1 घंटा मायने रखता है, ठीक है, टाइम है आपका, आप उसके हिसाब से पैसे चार्ज करें। अगर आप बोलते हैं कि यार मेरा 1 घंटा वाकई $5 के बराबर है, तो आप $5 चार्ज करने का मसला नहीं। अगर अपने सेल्फ वर्थ जाने, ठीक है, आप जाने कि यार मेरा 1 घंटा जो है ना बहुत कीमती है, इस घंटे में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप उसके हिसाब से चार्ज करें, $10 $15, ठीक है। क्लाइंट ऑब्वियसली क्लाइंट भी आपसे क्लाइंट प्राइस देखता है, आपका डिटेल्स देखता है, फिर ऑर्डर करता है, ठीक है ना, वो ऐसे नहीं आ जाता आपके पास। क्लाइंट भी आपसे उस तरह की एक्सपेक्टेशन लगा के आएगा। तो रिव्यू फॉर द सेक ऑफ रिव्यू ना लें, ठीक है ना, काम करें, अपना बेस्ट काम करें, एंड देन आपको रिव्यू मिल जाता है तो वेल बहुत अच्छा है, नहीं मिलता अगर आपको तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आज का जो पॉइंट है वो है रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस। इसके अंदर बात यह है कि दुनिया के अंदर ना सारे तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है, कंटेंट जो है ना हर तरह के लिखे जा रहे हैं। अब आपको अपने एथिक्स को डिफाइन करना है, ठीक है, आपके रिलीजियस एथिक्स, रिलीजन आपको कुछ भी हो सकता है, मतलब हर रिलीजन जो है वो एक सेट बताता है आपको कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना। जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैंने काम करना स्टार्ट करा था ना, तो आई वॉज इन एन एजेंसी, ठीक है, एजेंसी में था, मेरे सुपरवाइजर ने बोला कि यार फरजान ये काम आया है 4000 5000 वर्ड्स का, वैसे भी अच्छे थे उसकी, उन्होंने कहा कि यार ये काम कर दो, मैंने कहा कोई मसला नहीं, कर दूंगा। जब मेरे पास डिटेल आई काम की तो मुझे पता चला कि यार मैं जो हूँ ना वो एक कैसीनो के बारे में लिख रहा हूँ। कैसीनो के बारे में क्या लिख रहा हूँ, वेबसाइट कंटेंट लिख रहा हूँ उनका, जिसपे जो है ना वो लोग क्लिक करेंगे और मेरा कंटेंट पढ़ के लोग जो है ना वो वेबसाइट से खरीदेंगे। तो मैंने ये कहा कि यार ये जो है ना ये मैं नहीं कर सकता। मैंने अपने सुपरवाइजर को और अपफ्रंट बोल दिया कि यार मैं ये नहीं कर सकता। सुपरवाइजर ने ये बोला कि यार आई रिस्पेक्ट डिसीजन, ठीक है ना, आपके रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है, कोई मसला नहीं है। तो आप क्लाइंट से भी अपफ्रंट बात बता दें कि यार ये काम जो है ना ये मैं नहीं कर सकता, और अपने जो एथिकल कोड है ना आपका, उसमें आप हमेशा ट्रू रहे अपने आप से। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, हम लोग अगर बात करें तो गैम्बलिंग हमें अलाउड नहीं है मुसलमानों को, ठीक है, इस्लाम में। हम जो बात करें ड्रिंक्स जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसके बारे में लिखना, आपको अगर कंसीडर करते हैं कि आप एथिकल नहीं है तो आप ना लिखें, उनको बता दें कि यार आई कैन डू दिस, ठीक है ना, आपको रिलीजियस कोड है, बता दें उनको, वो भी आपको इस बात पर रिस्पेक्ट करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि यार इसने तो मना कर दिया, रिस्पेक्ट करेंगे कि यार हाँ इसने जो है ना अपफ्रंट मुझे बता दिया, और इसका जो है ना एक कोड है, ये ऐसा नहीं कि हर काम करना है। तो हमेशा जो है ना वो एथिकल कोड जो है अपना वो फॉलो करें। अच्छा, नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। आपकी जो है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। आपने स्किल सीख लिए, बेहतरीन सीख लिया आपने स्किल, की कंटेंट राइटिंग आपको बेहतरीन आ गई, आप जो है ना वो 2 साल से काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आपके पास कोई आता है, ठीक है, आपको बोलते हैं कि यार मैं जो है ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फ्रीलांस जर्नी, मुझे जो है ना आप थोड़ा गाइड करते हैं कि यार कैसे करते क्या करते हैं। आपने बोला नहीं भाई ये तो कंप्यूटर बन जाएगा मेरा, इसको नहीं गाइड करना, ऐसा ना करें, ठीक है। आपके पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने सीखा है तो आपको आगे सिखाना है, ठीक है, किसी ने आपको सिखाया होगा ऑब्वियसली, तो आपको आगे सिखाना है उसको। आप जो है ना वो उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे दें, उसकी हेल्प आउट कर दें। वो अगर कोई गिग बना रहा है उसमें डिस्क्रिप्शन लिखिए, आप उसको आगे ना आप थोड़ा सा बता दें कि यार इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे कीवर्ड लगा दो, ये कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, ये इमेज को थोड़ी सी अच्छी कर लो, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं तो थोड़ा ये बता दें, कोई टूल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा शेयर करते हैं उसके साथ। तो आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना कल्चर, अपना ग्रुप के अंदर भी, और आपकी कंट्री में जो है ना उनके लिए। आपको अपने मुल्क के अंदर कोई अगर चाह रहा है फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करना तो आप उसको हेल्प करें, तो ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मैं कहूँगा कि आजकल के बहुत एथिकल इश्यूज हैं
इस पे हम फ्रीलांसिंग तो चलती रहती है, ठीक है ना, बहुत आसान होता है अपना जो है ना वो ये एथिकल कोड छोड़ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और जब आपके पास ये टाइम आता है ना तो आपको दिमाग आपको कन्विंस कर रहा होता है कि हाँ यार कर लो, कोई बचता ही नहीं है, बाद में देखेंगे जो होता है। तो अपने एथिकल कोड पे ना हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, अपने एथिकल कोड को हमेशा फॉलो करें। आप अपने कोई आपका कोड होगा ना अगर, तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। अगर आपको कोई कोड ही नहीं है ना, आप सब कुछ कर लो, तो अगले वाला भी बोलेगा यार ये सब करता है, इसको इससे काम नहीं करवाना, इसलिए ट्रस्ट वर्दी आदमी। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल।